In today's video lecture, we will be discussing question and answers from the chapter 1 Reflection of Light at Curved Surfaces from the textbook TS-SCERT, which is common for Telangana state and AP state. So as you can see, these are the questions which are there at the back of the textbook and which are very important from examination point of view also. We will be solving all the questions inshallah in this video. So continue watching till the end. First, reflection on concepts, 6 questions. Applications of concepts, again you have 6 questions. And higher order thinking skills, you have 2 questions. So, first question, if you observe here, it is, where will the image be formed when we place an object on the principal axis of a concave mirror at a point between focus and center of curvature? It is telling that when an object is kept between focus and center of curvature, where the image will be formed. If this is the object between focus and center of curvature. So for that, we need to draw the diagram. See, this is my diagram. First, I'll explain you step by step how to draw this. First, draw a concave mirror. Then draw the principal axis here. Then draw P, F, C. Then keep the object between F and C and then draw the rays. When the ray is parallel to the principal axis, it passes through the focus. This is one rule which we are using. Another rule which we are using is when a ray passes through focus, it becomes parallel to the principal axis. So we observe that this particular ray and this particular ray, they meet at this point. So this is my image which will be formed. So where is the image formed? The image is formed after center of curvature. If this is center of curvature, image is formed after center of curvature. It is asking that question only, where the image will be formed. So where is the image formed? After center of curvature. So see, when we place an object on the principal axis of a concave mirror at a point between focus and center of curvature, the image will form at a point beyond the center of curvature. Beyond the center of curvature means after center of curvature, as you can see. Okay. Second question is, you have to write the differences between concave and convex mirror. Okay. See, state the differences between concave and convex mirror. So, first point you can say is, concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is towards the center of a sphere of which the mirror is a part. And in convex mirror we can say it is a spherical mirror whose reflecting surface is away from the center of a sphere of which the mirror is a part. Okay, here reflecting surface is towards the center of curvature, as you can see. This is P, F, C, right? This is my reflecting surface, right? Inside वाला surface क्या रहता आपका? Reflecting surface रहता. तो reflecting surface center of curvature के करीब है, उसको बोलेंगे हम लोग concave mirror. और convex mirror क्या रहता? Reflecting surface उसका center of curvature से दूर रहता. देखिए ये मेरा reflecting surface है, right? Reflecting surface ये मेरा PFC है. तो center of curvature तो यहाँ पर है. तो center of curvature convex mirror में दूर है when compared to the reflecting surface. लेकिन यहाँ पर ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अंदर ही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से करीब है कॉनकेव मिरर में, वो बोल रहा हो. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो फोकस कहाँ पर है? कॉनकेव मिरर में इन फ्रंट है. इसको बोलेंगे हम लोग, ये साइड को हम लोग बोलते हैं इन फ्रंट. तो फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यहाँ पे फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर. दिख रहा ना, ये कौन सा साइड है जो पॉलिश्ड रहता, ये बिहाइंड रहता यहाँ. तो फोकस कहाँ पे है? बिहाइंड द मिरर है. यहाँ पे इन फ्रंट, यहाँ पे बिहाइंड. फिर थर्ड पॉइंट, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर मतलब जहाँ पर रेज मीट होते. तो इसलिए कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर है? जहाँ पर रेज मीट होते. और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है? जहाँ पर रेज मूव अवे होते. यानी कॉन्वेक्स मिरर मूव अवे मतलब डाइवर्ज. इसलिए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर. फोर्थ पॉइंट हम लोग ये लिख रहे हैं, शेप ऑफ कॉनकेव मिरर ये है, शेप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये है. ठीक है, ये 4 डिफरेंसेस हो गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स के. और एक डिफरेंस आप लिख सकते, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता कि आपकी कौन सी इमेज बनेगी या कैसी इमेज बनेगी. रियल बनती, वर्चुअल बनती, इरेक्ट बनती, इन्वर्टेड बनती, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट.
बट कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपके पास वर्चुअल इमेज रहता, इरेक्ट इमेज रहता और डिमिनिश्ड इमेज रहता। ठीक है, दो ही केसेस है अपने कॉन्वेक्स में और दोनों भी केसेस में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेजेस बनते। ठीक है, तो अपना थर्ड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, जो टेक्स्ट बुक में है। रियल इमेज इज फॉर्म्ड इफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कन्वर्ज टू अ पॉइंट। अगर रेज मीट हो रहे एक पॉइंट पे तो तब आपका रियल इमेज बनता। और वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। मतलब अगर लोग अपीयर हो रहे मूव होने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या है? इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. Real image, it can be obtained on the screen. Virtual image, it cannot be obtained on the screen. Real image, here the rays actually meet at the image point. Virtual image, here the rays appear to diverge from the image point. ठीक है, फिर हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। हाउ डू यू गेट अ वर्चुअल इमेज यूजिंग अ कॉन्केव मिरर? वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा मेरे से कि आपको वर्चुअल इमेज कैसा मिलेंगी कॉन्केव मिरर यूज़ करके। तो कौन सा केस है वो जब आप लोग को वर्चुअल इमेज मिलती कॉन्केव मिरर से? टोटल 6 केसेस है ना कॉन्केव मिरर में, तो 6 केसेस में से कौन सा 1 केस है जहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज मिलती, वो बोल रहा उन्हें। तो आप लोग को याद रखना है, whenever object is placed between pole and focus, यहाँ दिख रहा है ना आप लोग को रे डायग्राम में, when object is placed between pole and focus, आपको इमेज कैसा बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है ये इमेज? आप लोग बोल सकते, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही? यहाँ बन रही। ये कौन सा साइड होता? बिहाइंड द मिरर रहता। और हम लोग को मालूम कि जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती वो वर्चुअल इमेज रहता। तो कौन सा केस है वो? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड एफ। देखिए यहाँ पे आई विल शो यू कैसा बन रहा है डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। कौन से रूल यूज कर सकते हैं हम लोग? व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस, ये वाली रूल यूज कर सकते। एंड व्हेन द रे passes through center of curvature, it goes back in the same path. तो जब आप ये रेज बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, ये दोनों रेज जहाँ मीट होते वो हो जाती मेरी इमेज। तो इसलिए क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर है इसलिए वर्चुअल। तो ये वाला केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस वी गेट वर्चुअल इमेज। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। फिफ्थ क्वेश्चन है, what do you know about the terms given below related to spherical mirrors? आई तक है। ठीक है, डेफिनेशन से ये पूरे। फर्स्ट पोल है, ए पोल। क्या है पोल? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। सेंटर क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर? क्योंकि ये मेरा मिरर है। ठीक है, ये है मेरा पोल। फिर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। The normal forms a concave mirror converges at a point. That point is called center of curvature. Means ये suppose मेरा point है, this is called as normal. जहाँ पे normal rays, ये मेरा normal है, जहाँ normal rays meet होते, converge होते, उसको बोलेंगे हम लोग center of curvature. Focus. The rays coming from the object parallel to the concave mirror will converge to a point, और अब और एक add कर लीजिए यहाँ पे point, और diverge away, क्योंकि कॉन्केव में कन्वर्ज होते और कॉन्वेक्स में डाइवर्ज होते। तो दो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में भी रहता ना फोकस या फिर फोकल पॉइंट, दोनों सेम है। तो आप लिखेंगे डेफिनेशन में, द रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पैरेलल टू कॉन्केव मिरर विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड और डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड फोकस और फोकल पॉइंट। ये लिखेंगे आप लोग। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स की वजह आप लोग यहाँ पे लिखिए पोल। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, डोंट राइट वर्टेक्स, राइट पोल। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ठीक है, एंड देन वी हैव प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोगों को मालूम प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहती है? मिरर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है ना, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है पी एफ सी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। लेट अस सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड सी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था? ये मेरा मिरर है ना। डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड द मिरर
is called as object distance indicated with the letter U. Object distance U से indicate करते हैं, आप लोग याद रखिए. तो distance between pole and center of curvature is called as object distance, or distance between mirror and object is called as object distance. ठीक है, mirror मतलब pole. ठीक है, याद रखो आप लोग ये. Image distance, distance between image and mirror is called image distance. वैसे ही अगर यहाँ पर suppose आपके पास image यहाँ बनी थी ना और ये मेरा mirror था, तो distance between ये image, okay, and this mirror is called as image distance, or distance between image and pole is called as image distance. Pole और mirror same रहता, क्यों? क्योंकि pole कहाँ पर रहता? Mirror के ऊपर ही रहता. ठीक है. Next is magnification. Magnification का definition है ratio of size of image to size of object. क्योंकि m is equals to minus v by u है formula. मतलब magnification is equals to image distance v है, object distance u है. v by u को क्या बोलते हैं हम लोग? by अगर आया तो ratio बोलते. इसलिए what is magnification? Ratio of size of image to size of object. ठीक है, ये 9 definitions थे. ठीक है, उसके बाद second है sixth question. What do you infer from the experiment which you did to measure the object distance and image distance? Infer मतलब वो हम लोगों से रिजल्ट पूछ रहा, ये एक्सपेरिमेंट से आपको क्या रिजल्ट निकल के आ रहा. कौन सा एक्सपेरिमेंट? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का एक कॉन्केव मिरर का जो एक्सपेरिमेंट था ये लेसन में से, उसमें रिजल्ट क्या मिल रहा है बल्कि पूछ रहा हो. ठीक है, तो उसका आंसर है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग the object distance and image distance, we can observe the nature of image formed by concave mirrors, and we can infer that concave mirrors form both real and virtual image. मतलब आप ये जो एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें आप जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखते, कभी 10 सेंटीमीटर पे रखते, कभी 12 सेंटीमीटर पे रखते, कभी 15 सेंटीमीटर पे रखते, और जब आप ये रखेंगे तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होता. ठीक है, कभी 12 है, कभी 13 है, कभी 14 है, और ये चेंज हुआ तो फिर मैग्निफिकेशन भी चेंज होता है. यानी इमेज इरेक्ट है, रियल है, वर्चुअल है. मतलब ये सब क्या है? इरेक्ट, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, ये सब नेचर ऑफ इमेज है. तो आपको एक तो नेचर ऑफ इमेज मालूम हो रहा कॉन्केव मिरर्स का, और हम लोग को और एक चीज़ मालूम हो रही कि हम लोग को कॉन्केव मिरर से रियल इमेज भी बन सकती और वर्चुअल इमेज भी बन सकती. 5 केसेस में रियल इमेज बनती और एक केस में वर्चुअल इमेज बनती कॉन्केव मिरर से. ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग को ये मालूम हो रहा, एक नेचर ऑफ इमेज और एक रियल एंड वर्चुअल इमेज. ठीक है, फिर सेकेंड सेक्शन इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 centimeter in front of concave mirror whose radius of curvature is 8 centimeter. Okay, so before solving these type of questions आप लोग को साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर मालूम रहना ज़रूरी है, फिर ही आप लोग ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर सकते. ठीक है, बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ऐसे टाइप के, जिसमें आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है. ऐसे प्रॉब्लम्स इफ यू नो साइन कन्वेंशन ओनली देन ओनली यू कैन डू दिस साइन कन्वेंशन. आई विल एक्सप्लेन यू नाउ. So for doing any numerical problem based on reflection of light at curved surfaces, we need to follow some signs for spherical mirrors. So we have U, V, M, F, R. U is object distance, V is image distance, M is magnification, F is focal length, and R is radius of curvature. So for concave mirror, all these 5 parameters U, V, M, F and R, that is object distance, image distance, magnification, focal length and radius of curvature will be negative, that is minus. And for convex mirror, object distance will be minus, but rest all, that is image distance, magnification, focal length and radius of curvature will be plus. Okay, so remember, for concave mirror and convex mirror, U is minus, but for concave mirror all are minus, and for convex mirror all are plus except object distance. Okay, when we apply the problems, when we solve the problems, we'll apply these. So now let's start. First, it is given that we have to find distance of the image, right? And where is the object placed? The object is placed on the central axis, okay, at 10 centimeter in front of concave mirror. Okay, the object is at a distance of 10 centimeter, okay, in front of concave mirror. Means what is that? Object is at a distance of 10 centimeter means it is object distance, and we know that object distance is indicated with the letter U. So U is equals to minus 10 centimeter.
Now why is it minus? Because we know that for convex mirror both u and v are positive, sorry, both u and v are negative, and this mirror is concave mirror. Why mistakenly I have written it as convex? Okay, see, it is concave mirror. Okay, so instead of convex mirror, here you have to write concave mirror. Okay, yeah, right here concave mirror, u is equals, for concave mirror u is minus, and it's also telling me whose, here should be written as concave, remember that. And apart from that, it's telling me that radius of curvature is how much? Radius of curvature is 8 centimeter. Means what is radius of curvature? R. So R is given as 8 centimeter. But will it be minus or plus? It will be minus, because we know that in concave mirror all are minus. Okay. Now what we have to find out here? We have to find out V, that is image distance. So first, since radius of curvature is given, we will find out the focal length. What is the formula to find out focal length if radius of curvature is given? We have the formula R is equals to 2f. So what is R? Minus 8 is equals to 2 into f. So f is equals to minus 8 as it is, into 2, if it goes outside becomes divided by 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8. So we have f is equals to minus 4 centimeter. Now since we have f, okay, and we also have u, we can easily find out v with the mirror formula. 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u. So here it should not be anything. Okay, what is f? Minus 4. So 1 by minus 4 is equals to 1 by v plus 1 by u is 1 by minus 10. So 1 by minus 4 is equals to 1 by v, plus into minus is minus. So minus 1 by 10. So 1 by v we want to find out, right? So 1 by v is equals to, opposite is minus 1 by 4. Minus 1 by 10, if it goes outside becomes plus 1 by 10. So 1 by v is equals to, take out the LCM of 10 and 4. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 5 as it is, 5 1s are. So 2 2s are 4, 4 5s are 20. LCM of 4 and 10 is 20. How to do? Remember, denominator divided by denominator. 20 by 4 is 5, and 5 into minus 1 is minus 1. Plus is there, so write down plus. 20 divided by 10 is 2, and plus is there, so plus 2. Now minus 5 plus 2 will give you minus 3. So we have 1 by v is equals to minus 3 by 20. Now cross multiply. Minus 3 into v is equals to 20 into 1 or 20. 21s are 20. V is equals to minus 20 as it is, into 3 if it comes this side it becomes divided by 3. So it is minus 20 by 3. If you divide minus 20 by 3 and see, you will get the answer as 6.66. See, 3 6 are 18, 20 minus 8 is 2, put a point, bring down 0. 3 6 are 18, 20 minus 2 is 2, take a 0, 3 6 are 18. So we got 6.666. So V is equals to minus 6.666 centimeter. So in the question, it just told me to find out the distance of image. It didn't ask me to find out nature of image. It just asked me to find out distance of image. So just I'll write image distance, which we got, distance of image is minus 6.66 centimeter. Now next question is, the magnification produced by a plane mirror is plus 1. What does this mean? So if m is equals to plus 1, then we have the formula of magnification. M is equals to height of the image hi by height of the object h naught. So since m is plus 1, in place of m substitute 1. So 1 is equals to hi by h naught. Now take this h naught this side, cross multiply. So it becomes hi is equals to h naught. So if m is equals to 1, what are we getting? Height of the image is equals to height of the object. So we can say that whenever m is equals to plus 1, the size of the image or height of the image will become equal to height or size of the object. How are we doing that? In place of m, in the formula substitute 1 and cross multiply, you will get hi is equals to h naught. Next question is, if spherical mirrors were not known to human beings, guess the consequences. It is telling me that if in nature, in real life, if we did not know, if scientists did not find out what is concave mirror, and if scientists did not find out what is convex mirror, because it is telling if spherical mirrors were not known to human beings. Spherical mirrors are concave and convex. So if concave and convex mirrors did not exist, then what would happen? That is the question. So first we will write the uses of spherical mirrors. So spherical mirrors are used by human beings in their daily life. Convex mirrors are used in hospitals, hotels, stores, apartments, roads, ATMs.
computer monitors, rear view mirrors in vehicles, and also in sunglasses. Whereas concave mirrors are used by ENT specialists, dentists to see inner parts of mouth. Car headlights are used to get parallel beam of light. Solar crackers are also made from concave mirrors. So everywhere we are using these spherical mirrors. So since there are so many uses of spherical mirrors, you have to write these uses of concave mirror and convex mirror, and then you have to write, so without these spherical mirrors, the life of human beings would have been miserable. That will be the consequence, that will be the result. ये result है कि अगर spherical mirrors हम लोग को नहीं मालूम रहता तो human beings की life जो है miserable हो जाती थी, यानी तबाह हो जाती थी. ठीक है, because ये सब uses है उसके. Next question है, draw suitable rays by which we can guess the position of image formed by concave mirror. तो कौन से रेज यूज़ करके हम लोग इमेज के पोजिशंस ड्रॉ कर सकते हैं कॉन्केव मिरर के. मतलब इन्हें क्या बोल रहा है मेरे को, रूल्स आप लिखो जो कि हम लोग को कॉन्केव मिरर ड्रॉ करने के लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर ड्रॉ करने के लिए यूज़फुल रहते. तो ऑलरेडी मेरी एक वीडियो भी है रूल्स पे, बट स्टिल सिंस ये आंसर है आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन. ठीक है, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर. फर्स्ट रूल है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा कॉन्केव मिरर है. whenever a ray is parallel to principal axis it passes through focus, वही लिखा हुआ है. सेकेंड रूल, when the ray passes through focus it is parallel to the principal axis. थर्ड रूल, when the ray is traveling in the direction of center of curvature it goes back in the same path. ये तीनों आप लोग को लिख के ड्रॉ करना है अगर उन्हें ये क्वेश्चन पूछा तो. ड्रॉ सुटेबल रेज by which we can guess the position of image by concave mirror. Fifth question है, show the formation of image with a ray diagram when an object is placed on the principal axis of a concave mirror away from the center of curvature. Away from the center of curvature का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बियॉन्ड C, मतलब C के बाद. तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कैंडल दिख रही है आप लोगों को, मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे C पे लगा ली. सो कौन सा रूल यूज़ कर सकती मैं एक रूल यूज़ कर सकती, व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस. और दूसरी रूल यूज़ कर सकती व्हेन द रे पासेस टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन द रे पासेस टू फोकस इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों रेज कहाँ मीट हो रहे, ये दोनों रेज यहाँ पे मीट हो रही है पॉइंट पे, ये वाली रे और ये वाली रे यहाँ पर मीट हो रहे. तो मेरी इमेज कहाँ है, बिटवीन F एंड C. देखो ये रे और ये रे यहाँ पर मिल रही, तो द इमेज इज फॉर्म बिटवीन F एंड C. तो ये फॉर्मेशन बता दी मैं डायग्राम से, फॉर्मेशन ऑफ इमेज. अब मैं लिखूंगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, comma the image is formed between the focus F and the center of curvature C. The image is real, inverted and diminished in size. Real क्यों है, because it is real because it is in front of the mirror, and why it is inverted because principal axis के नीचे है. and diminished क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है इसलिए diminished है. diminished मतलब स्मॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do we prefer a convex mirror एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम लोग व्हीकल्स में रेयर व्यू मिरर क्यों, हम लोग मिरर्स में रेयर व्यू मिरर यूज़ करते. तो रेयर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर का क्यों बनाते हम लोग, कॉन्केव का क्यों नहीं बनाते, या प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज़ करते हम लोग, कॉन्वेक्स ही क्यों यूज़ करते रेयर व्यू मिरर को व्हीकल्स में. तो इसका आंसर है, convex mirror is used as rear view mirror in vehicles because it always produces a virtual and erect image whose size is smaller than object. आपको मिरर में जो है छोटा इमेज दिखता और आपको इरेक्ट इमेज दिखता, मतलब स्ट्रेट इमेज दिखता. इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट एंड इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, therefore it enables the driver to see wider field of view and traffic behind the vehicle in a small mirror. rear view mirror मतलब जो मिरर कार्स में लगा हुआ रहता है, व्हीकल्स में, स्कूटर्स में, बाइक्स में लगा हुआ रहता है बाजू, उसमें आप क्या देख सकते हैं, बहुत सारे कार्स देख सकते हैं ना. क्यों देख सकते हैं बहुत सारे कार्स, बिकॉज जो इमेज रहती है वह छोटी रहती, और क्या बोलते हैं वर्चुअल रहती, बैक साइड ऑफ मिरर रहती और इरेक्ट रहती. तो जो व्यू है बहुत ज़्यादा वाइड रहता और ट्रैफिक अच्छे से मालूम होती स्मॉली मिरर में, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं एज रेयर व्यू मिरर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर फॉर अ व्हीकल. इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. तो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे मेंशन, तो मैं कॉन्वेक्स मिरर हेडिंग लिख रही हूँ. ठीक है, क्या गिवन है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर, ये गिवन है, ठीक है. 1 सेकेंड. एंड इट्स गिवन दैट अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, u इज इक्वल्स टू -5 मीटर्स. वाई इज इट माइनस, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस रहता. और वी हैव टू फाइंड द पोजीशन, मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको. नेचर, ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है या फिर डिमिनिश्ड है, वो सब फाइंड आउट करना है. और साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, साइज डिमिनिश्ड है या फिर इनलार्ज्ड है. तो फर्स्ट, सिंस u एंड r आर गिवन, आपके पास f नहीं है, तो f आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू 2f. आप f फाइंड आउट करेंगे. r 3 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ. So f is equals to 3 as it is, into 2 if it goes that side becomes divided by 2. तो 3/2 अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1.5 मीटर्स. अब हम लोग को f की वैल्यू मिल गई ना, फोकल लेंथ 1.5 मीटर्स, तो अपने पास u भी है, f भी है, तो हम लोग इजीली मिरर फॉर्मूला यूज़ करके v फाइंड आउट कर सकते. सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. f कितना है दिया हुआ, 1.5 दिया हुआ है. सो 1/1.5 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-5. प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, सो माइनस 1/5. 1/v इज इक्वल्स टू 1/1.5 एज इट इज, माइनस 1/5 इट कम्स दिस साइड, इट बिकम्स प्लस 1/5. 1/v इज इक्वल्स टू, आपके पास यहाँ पर देखिए, नोटिस करिए आप लोग, डेसिमल पॉइंट है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट कैसे हटाएंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 10 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो 10 1 10 आ गया न्यूमरेटर में, और 1.5 इंटू 10 क्या होता है, 15, बिकॉज दिस डेसिमल पॉइंट इज यूज टू रिमूव दिस जीरो. तो अपने पास 10/15 आ गया प्लस 1/5 है, ठीक है. तो 1/v इज इक्वल्स टू 15 और 5 के एलसीएम, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15 है. डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 15/15 क्या होता है, 1. दैट मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, 1 इंटू 10 10 होता, प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3, सो 3 1 ज़ा 3, 10 प्लस 3 13 है. 1/v इज इक्वल्स टू 13/15. So now cross multiply, 13 into v is 13v is equals to 15. v is equals to 15 as it is, into 3 if it comes inside becomes divided by 13. v is equals to 15/13. डिवाइड करिए, 13 आउटसाइड 15 इनसाइड. देखिए यहाँ पे 13 1 ज़ा 13, ठीक है. 15 5 minus 3 is 2, put a point, bring down 0. 13 1 ज़ा 13, 20 minus 3 is 7, take a 0. 13 5 is 65. So v is equals to plus 1.15 meters. क्योंकि v प्लस है, हम लोग को मालूम हो रहा इमेज कैसा है, वर्चुअल. एट बैक, वर्चुअल मतलब इट इज़ बैक साइड ऑफ द मिरर. याद रखिए, अगर v माइनस रहता था तो रियल रहता था, v प्लस है बोल के इमेज कैसा है, वर्चुअल है. अब हम लोग, क्योंकि हम लोग को साइज ऑफ इमेज लिखना है, और हम लोग को, हाँ, साइज ऑफ इमेज लिखना है और नेचर लिखना है. साइज ऑफ इमेज पूछा वो या नहीं पूछा, यहाँ पर क्वेश्चन में साइज भी पूछा था, ठीक है. तो साइज पूछा मतलब HI की वैल्यू पूछा, ठीक है. सो ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HI. फाइंड आउट द साइज ऑफ द इमेज मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HI ऑल्सो. सो हियर m is equals to HI by H0, that is equals to minus v by u. m is equals to HI. Here we are using the formula m is equals to minus v by u first. m is equals to minus v by u. By using this formula, minus as it is, v is given as, we found out 1.15 by u is minus 5. So 1.15 by 5 if you divide here, you will get the answer 0.23. तो आपको m is equals to 0.23 आया. तो हम लोग बोल सकते, क्योंकि m प्लस है, it means that m here is erect in size by a factor of 0.23. And since यहाँ पर m की value less than 1 है, we can say image is diminished, okay, because here m is 0.23 less than 1, okay. So now we'll find out what is the size of the image, okay. तो m is equals to HI by H0 का formula, but here H0 is not known to us, and so we cannot find out what is HI. We don't know what is H0, right? Height of the object here. So we cannot find out what is height of the image. In the question, it just gave radius of curvature and object distance. Okay. So this is how you have to do. Okay. We have found out how is the nature of the image, size of the image, and also here you can write it is diminished. Diminished बोल के भी लिख दो आप लोग, क्योंकि वो पूछ रहा कि साइज क्या है. HI तो फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज H0 नहीं क्या है नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे आप
डिमिनिश्ड बोल के लिख दीजिए बिकॉज इट इज़ लेस देन 1, m इज़ लेस देन 1 इसलिए डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। टू फॉर्म द इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ, हाउ शुड वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अगर आपको इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही दिखाना है तो आप जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉन्केव मिरर पे कहाँ रखना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखना सच दैट आपको इमेज भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आती, वो है मेरा क्वेश्चन। तो हम लोग को मालूम एक ही केस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर आता, वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ पे आती, सी पे आती। तो वो एक्सप्लेन करो बोल रहा वो, तो हम लोग एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट विल डू इज, हम लोग एक कॉन्केव मिरर लेंगे। हम लोग जब कॉन्केव मिरर लेंगे तो वी हैव टू फॉर्म द इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ। द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो मालूम है हम लोग को। ऑब्जेक्ट ए बी हैज़ बीन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपकी जो कॉन्केव मिरर है, यू नो दैट कॉन्केव मिरर इज लाइक दिस। तो आप लोग जो है ये CBSE का नोटेशन है, आप लोग जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ड्रॉ करिए। ठीक है, PFC, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे, आप लोग रूल्स यूज़ करिए, आप लोग को आ जाते। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर कर रहे AB है। ठीक है, इट हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर C ऑफ द कॉन्केव मिरर, और हम लोग इसको नेम कर दे रहे। देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट AD जो है यहाँ पर है, हम लोग नेम कर रहे रे ऑफ लाइट को ADRE, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सप्लेन कर रहे वो, पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एज DA, इसको भी नेम कर रहे। फोकस है जो रे लाइट पास हो रही है वो DA है। A ray of light passing through the focus of the concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection, ये रूल लिख दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं here AE ray passing through focus and reflected as EA dash, ये सेकेंड वाली रूल है। ये रे है जो कि सॉरी फोकस से और फिर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, वो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे EA डैश बन जा रही वो, ये A डैश एक्चुअली। ठीक है, दिस इज A डैश। फिर द रिफ्लेक्टेड रेज DA डैश एंड EA डैश, आपको दिख रहा ना ये वाली रे जो है रिफ्लेक्टेड रे DA डैश और EA डैश कहाँ मिल रही है, दोनों भी यहाँ पर मिल रहे हैं, ये वाली रे और ये वाली रे। ठीक है, ये वाली रे और ये वाली रे कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट A ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, A डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मेरा इमेज बन गया I। तो हम लोग लिखेंगे टू गेट इमेज AB डैश परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मेरा इमेज है A डैश B डैश, परपेंडिकुलर है ना प्रिंसिपल एक्सिस से, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, सी इट इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री, सो दस A डैश B डैश इज द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चंस। टोटली आप लोग के पास TS SCERT की टेक्स्ट बुक में 14 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, so this completes our lesson. Hope you have found this video helpful. If you have found this video helpful, then please like, share and subscribe.